नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजेश ठाकुर अपने चैनल डॉक्टर राजेश ठाकुर इंग्लिश ग्रामर सीरीज के एक नए अंक के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैंने राइटिंग सेक्शन में स्टोरी राइटिंग बताया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और स्टूडेंट्स ने ये डिमांड करने लगा कि राइटिंग पोर्शन का कुछ और भाग हम लोगों को दिया जाए। तो आज मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल राइटिंग केवल सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या एकेडमिक इंग्लिश से ही जुड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी एक हिस्सा बन चुका है। दिस हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द वर्क्स ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एकेडमिक इंग्लिश। So today we shall discuss different aspects of article writing. First of all, I am going to tell you the introduction, what article writing is and how you have to write. Introduction, that is, article writing is a long answer type of question in CBSE, IC or any other board exam. यह एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो एकेडमिक एग्जाम्स बोर्ड में पूछा जाता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। इट कैरीज 5 to 10 marks approximately. It means this is such a part of the syllabus of academic English that a student can't ignore it. You can't ignore article writing, otherwise you will have to face the downfall in the aggregate marks. अब हम लोग we are going to discuss certain important points related to article topic, article writing. It is first format and content. These are two important points. Format. In your examination, examiners include these points to assess your answer. Format includes heading and writer's name. It bears 1 marks. Second is content. Content includes fluency and accuracy. Content is the main part, which bears approx 4 marks, and fluency 3 marks, accuracy 2 marks. In board exams, fluency and accuracy is the component of content. तो जैसे फ्लुएंसी में आपको बताता है, फ्लुएंसी में यह बताएगा कि आपने आर्टिकल को किस तरह से पॉइंट अरेंज किया, हाउ मच expression you have made in your writing, whether there is coherence of ideas in your writing or not. And accuracy stands for grammatical errors and spellings. So some students say that grammatical errors in CBSE board or ICSE board or other board exams are not important. But no, these are remarkable in the evaluation of your answers. Second is format. Now let us discuss format. Format, there are 3 parts of the format: heading, byline and body. अब हम लोग इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं. Let us discuss now. First is heading. What we have to keep in mind while writing heading. Heading is an important part of your part of this article writing. As we have discussed, it bears a particular marks, 1 or 2 marks. Heading writing में जो important points है, we have not to exceed, don't exceed more than 5 to 6 words. Heading writing में 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Avoid spelling mistakes and grammatical errors. And avoid punctuation marks, because in title there are certain important factors which are to be ignored, like punctuation marks and other things as you have mentioned. Second is byline. It is the name of a writer below the headline. Don't give any personal
डिटेल्स। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी स्टूडेंट का नाम दे देता है, राइटर का नाम रहता है और उसे दे देना चाहिए। यू शुड नॉट मेंशन पर्सनल डिटेल्स, अदरवाइज यू शुड गो थ्रू द टाइटल। थर्ड पार्ट इज बॉडी। इट इज द मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग which carries more weightage of marks. It consists 3 to 4 paragraphs. मेन बॉडी जो है आर्टिकल राइटिंग में वह उसका वेटेज रहता है। इसमें आर्टिकल राइटिंग में 3 से 4 पैराग्राफ्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हम पैराग्राफ वाइज डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस पैराग्राफ वाइज। पैराग्राफ 1 इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। वी इंट्रोड्यूस द टॉपिक। Use quotations, frightful facts or to excite the interest of readers. Keep the language simple. अब introduction में we have to introduce the topic in a very interesting way. हमारा शुरुआत बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहा गया है। जो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो हमें कंटेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसको यूज किया जाता है। इसमें बता रहा है कि आपके पास कुछ कोटेशंस अगर हों शुरुआत में टॉपिक से रिलेटेड तो अच्छा लगता है। सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ दे मस्ट कम विथ अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक। द राइटर एनालाइज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग। मतलब यह है कि हमें पूरे टॉपिक से जुड़े हुए जो बातें हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वह है दे मस्ट कम विथ ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टॉपिक। इसमें सब्जेक्ट मैटर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है कि राइटर एनालाइज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग। उस टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स जो प्रॉब्लम होते हैं उसको राइटर एक्सप्लेन करते हैं। पैराग्राफ 2 and 3 explains current situation, advantages और disadvantages of the problem। ये advantages और disadvantages से जुड़ा हुआ सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ होते हैं। They also develop the cause and effect relationship of supporting it with facts और data और consequences। उसमें बताता है कि ये जो रिलेटेड है, there is correlation between the facts, data and its effect। Paragraph second and third. Paragraph second and third is also called conclusive paragraph। ये जो थर्ड या लास्ट पैराग्राफ कह सकते हैं, किसी किसी में फोर्थ पैराग्राफ होते हैं, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ जो होते हैं वह कंक्लूसिव किया जाता है। इट हैज़ बीन रिटन बाय मिस्टेक हेयर ऑन 2 और 3 बट इट शुड बी 3 and 4। तो थर्ड और फोर्थ जो पैराग्राफ होते हैं वो कंक्लूसिव होता है। इट स्पीक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स रेज्ड एंड देयर सोल्यूशन और सजेशंस टू टैकल देम। तो जो लास्ट पैराग्राफ होते हैं वो इनफैक्ट दैट इज ए टाइप ऑफ समरी और ए टाइप ऑफ जिस्ट टू कंक्लूड द टॉपिक। तो ये कम से कम 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ आर्टिकल राइटिंग में होते हैं। अब हम बता रहे हैं लेट अस डिस्कस द टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग। अब हम टिप्स आर्टिकल राइटिंग का टिप्स बताने जा रहे हैं। पहला क्या है? ऑलवेज हैव ए फ्यू जनरल कोटेशंस रेडी। यू शुड हैव कोटेशंस रेडी related to the topic if you can. Second, avoid repetition of ideas. We should not explain the same ideas in different ways. एक ही बात को हम बार बार दूसरे ढंग से नहीं लिखना चाहिए। You may give your personal opinion in a few lines. इसमें हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। कुछ लाइन्स टॉपिक से रिलेटेड ओपिनियन राइटर फ्री है, वो दे सकता है। डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक से हमें अलग नहीं होना है। डोंट लिंक वन टॉपिक टू अनदर टू डेविएट फ्रॉम द मेन पॉइंट। हम एक टॉपिक को लिखने जा रहे हैं और उससे जुड़ी हुई दूसरा टॉपिक में नहीं घुसना चाहिए। यूज ए स्मॉल एंड सिंगल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। हमें छोटी छोटी सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए। अंडरलाइन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राइटिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम अंडरलाइन करना चाहिए।
चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन स्पेलिंग्स, हमें ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है देखना चाहिए, स्पेलिंग्स है उसको देखना चाहिए। रीड एडिटोरियल्स इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एंड नोटिस द पैटर्न, हमें समय समय पर एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर्स हैं मैगजीन्स है इसको पढ़ना चाहिए ताकि हमें आर्टिकल राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो। ये मैं बता रहा हूँ हायर क्लासेस के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स कि कैसे हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए XYZ कोई राइटर है जो लिखा हुआ है तो उसके बारे में दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स पर हम आज बताने जा रहे हैं। बाई XYZ बाई लाइन हुआ और इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स टाइटल हुआ जिस पर मार्क्स आपको मिलेगा। अब इंट्रोडक्शन फर्स्ट में देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, चूंकि ये रिलेटेड साइंस से टॉपिक है इसलिए हमने दिया कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। Mobile phones are one of the most commonly used gadgets in today's world. Everyone from a child to an adult uses mobile phones these days. They are indeed very useful and help us in so many ways. ये बता रहा है कि हर आदमी बच्चा से लेकर सयाना तक मोबाइल में इंगेज रहता है और वास्तव में बहुत ही यूजफुल है कई तरहों से। तो इंट्रोडक्शन हुआ। सेकेंड पैराग्राफ मेन कंटेंट में आता है। देखिए, मोबाइल फोन्स हैव मेड आवर लाइव्स इजी एंड कन्वीनियंट। गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड देम फॉर ओनली calling. Now they are used for communicating through voice messages and mails. We can also surf the internet using a phone. We click photos and record videos through them. तो आप यहाँ पर जो इसका समरी हिंदी में बता देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। अब वह दिन गया जब केवल बात करने के लिए मोबाइल का यूज किया करते थे। आजकल हम लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं वॉइस के द्वारा, मैसेज के द्वारा, मेल्स के द्वारा। हम नेट सर्फिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन पर, हम फ़ोटो खींचते हैं, वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग करते हैं। उससे आगे वीडियो कॉलिंग, पासिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग हैव बिकम वेरी कॉमन। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हम भेजते हैं मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सब कॉमन हो गया है। वी यूज सोशल मीडिया एंड प्ले म्यूजिक थ्रू देम। In fact, they are more than mini computers and laptops. We carry out all the tasks through mobile phones, which we initially did using computers. जो पहले हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर किया करते थे, आज हम ये सारा चीज़ मोबाइल पर करते हैं, मोबाइल के द्वारा। We calculate statistics on them. We can even make PowerPoint presentation on our phones. मोबाइल फोन्स हैव ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ में एडवांटेजेस था, अब फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन था, सेकेंड पैराग्राफ एडवांटेजेस, थर्ड पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोबाइल फोन्स हैव ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस। एज पीपुल स्पेंड टाइम ऑन देयर फोन्स दे डोंट टॉक टू ईच अदर मच, हेंस कम्युनिकेशन गैप। अब देखिए अधिकांश आदमी मोबाइल में डूबे हुए रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, लोगों के बीच कोई बात नहीं होती है, इसलिए लगता है जैसे कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। दे आर बिकमिंग डम्बर व्हाइल यूजिंग स्मार्टफोन्स। जब ये स्मार्टफोन यूज करते हैं, कोई बातचीत नहीं करती है तो जैसे लगता है कि गूंगा बन गया। दे अफेक्ट आवर आई साइट्स एंड कॉज स्ट्रेन ऑन आवर ब्रेन्स। ये हमारे आंखों को प्रभावित करता है और ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। We also suffer from headaches, हमें हेडेक्स होती है ना, वाटरी आइज, स्लीपलेसनेस एंड मोर। इस तरह से आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, नींद हमारी गायब करती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में देर रात तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दे हैव क्रिएटेड अ लैक ऑफ प्राइवेसी इन पीपुल्स लाइफ। आवर इंफॉर्मेशन इन मोबाइल फोन्स
is vulnerable to hackers. They are also responsible for social, political, and other crimes indirectly. Children need parental care to check cultural pollution and immoral activities. अब देखिए, इस मोबाइल के द्वारा लोगों की प्राइवेसी खतरे में रहता है। हम जो डाटा स्टोर किए हुए हैं वो हैकर्स के नज़र पर कभी भी रहता है, जो हैक करता है। इसमें जो हमारे समाज में, सोसाइटी में, देश में, विदेश में जो क्राइम्स हैं, मोबाइल भी उसमें कम योगदान नहीं है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन जिस तरह से हम करते हैं, तो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी इसका उपयोग वह करता है। बच्चों पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। बच्चों को पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए मोबाइल का ये निगेटिव पहलू है। कंक्लूडिंगली, मोबाइल फोन्स आर कर्स और ब्लेसिंग डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ मिसयूज ऑफ देम, डिपेंड्स ऑन द यूज और मिसयूज ऑफ देम। अब मोबाइल आशीर्वाद है या शाप है, यह हमारी यूज और मिसयूज पर निर्भर करता है। अब नीचे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि पैराग्राफ वाइज में हमने क्या क्या दिया। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिए हैं, सेकंड पैराग्राफ में एडवांटेजेस, थर्ड में डिसएडवांटेजेस और फाइनल कंक्लूजन दिए हैं। तो इस तरह से हमने आज आप लोगों के सामने एक उदाहरण के साथ, ये आपको नहीं लिखना है लास्ट में, जहाँ तक एंडिंग है वहीं तक आर्टिकल राइटिंग है। तो आप लोगों के सामने आज मैंने आर्टिकल राइटिंग का डिटेल्स स्टडी बताया। तो आप लोगों को यदि यह लाभ हो, आप लोगों को अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नए अंकों के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित रहूँ। थैंक यू।